Karan Arjun में I feel अगर मेरे राय ले तो नेचुरली ऋतिक Yeah, एंड obviously. रणबीर कपूर से पिक्चर हो वही बनाना चाहिए जो नहीं होगा तो वही ऑडियंस को अच्छा लगता है देखने के लिए शाहरुख कि मैंने फौजी देखी थी एंड यू आर अ वेरी फाइन एक्टर वुड यू लाइक टू जॉइन फिल्म्स He said no. Then I told him that this is my number. If you change your mind, give me a call. Next morning ही उसका फोन आ गया. अजय शायद नहीं समझा उस वक्त. क्या है कि नए नए होते हैं, नए नए छोटे हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है उनको. जब भी कोई कहानी के कोई आइडिया आए दिमाग में या कुछ तो मैं ऋतिक 14, 15, 16 साल का था तो उसको सुनाता था. अच्छा. तो ऋतिक gave me a recall value. He said कि Papa, sometime back you had narrated me a reincarnation story, mother and two sons. Why didn't you make that? Hi, I'm Rakesh Roshan and you're watching me on midday.com. Hello, sir. Hello. Welcome to Midday, and this is such a wonderful occasion to be actually speaking to you on, because this is 30 years of Karan Arjun that now I think the generations who could not see the film then and have only watched it on television will now actually get to watch that. So first of all, thank you so much for bringing it back. How are you feeling right now? Are you getting those Friday jitters right now कि जो 30 साल पहले you had, now that the film is coming back, trailer भी out हो गया and people are actually reacting to the film's trailer जैसे कि ये पहली बार कोई trailer देख रहे हैं. Yeah, that's a good sign. But jitters are still there because I'm catering to the younger generation. And I want to see that if they also lap up the film the way it was received 30 years back. Actually, it's a test for me also and for filmmakers to see if those kind of emotions still work with the younger generation or not. If it works, that means emotions still and will always remain. And if it doesn't work, that means we have to change the style of filmmaking. But that the decision that you took to bring it back on screen, how was that? How did you think of this? What was it motivated by कि ये करते हैं? एक तो देखो 30 साल हो गए पिक्चर को तो आई हैव टू सेलिब्रेट एंड देन शाहरुख एंड सलमान आर स्टिल द बिगेस्ट सुपरस्टार्स वी हैव टुडे सो आई थॉट इट वाज द राइट टाइम दैट दे आर स्टिल देयर एंड ऑन द टॉप एंड द फिल्म इज वेरी मच टॉक्ड अबाउट इवन टुडे memes are there and Rakhi's dialogues comes मेरे करण अर्जुन आएंगे और भाग अर्जुन भाग तो मैंने सोचा ये सब शायद लोगों को अच्छा लगे तो प्लान किया रिलीज करने और बड़े पैमाने में रिलीज कर रहा हूँ आई हैड दैट टाइम 30 years back the song was in mono I made it in Dolby just now and have done the full DI of the film so it looks absolutely a new film. Oh, that's so wonderful. But sir, I feel like in the beginning you were saying that will the emotions hold? And for someone who was 4 or 5 year old when Karan Arjun released, I have watched the film n number of times on my television. And I was telling someone, a friend, that how every time Amrish Puri would come on screen, I would just take the pillow and cover my face because I used to be so scared. Because I felt that so much of the film it's so evocative, right? Because you feel the love between the brothers, you feel the love between the mother and the sons, and you also feel so much fear, because of how you have shot all those scenes. And I feel like today we actually don't have those kind of films which evokes all these emotions. So in my view, honestly, that if we watch Karan Arjun today, we'll still feel the same sort of कि यार डर भी लग रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, and you're also crying. Yeah, but with that conviction only I believe in the film. So let me see how the younger audience of younger generation of today reacts to it. But जब आपने तब बनाया था तो किसी ने बोला था कि reincarnation, ये यार ये will this work? कौन देखना चाहता है? Because I remember तब love stories में होता था, पुनर्जन्म, but to have, two brothers. You know what I felt that when love stories where they believed in reincarnation, the love between the mother and children are more strong.
तो माँ का जो बिलीफ है कि मेरे बच्चे आएंगे, और माँ के सामने जब दोनों बच्चों को मारते हैं और माँ मंदिर में जाती है और भगवान से कहती है कि हे भगवान, माँ मेरे बेटे मेरे लौटा दे। सो इट बिकेम सो कन्विक्शन, दैट कन्विक्शन से उन्होंने डायलॉग बोला। सो वो इतना सच्चाई थी उस बातों में। राखी ने जिस तरह से वो डायलॉग्स बोले हैं कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, so that became a very believable dialogue. And people then wanted Karan Arjun to come back. वो ऊपर से गिरे, धरती से आए, कहीं से भी आए जरूर। But sir, और रीइंकार्नेशन इसलिए किया, अब मैं एक हीरो भी रख सकता था। correct. मगर आपने देखा होगा कि जब भी लव स्टोरीज में वो कुछ हादसे की वजह से वो गुजर जाते हैं, फिर वो दूसरा जन्म लेते हैं, तो उन लोग कहीं मिलते हैं, उनका कोई रैपो होता है, कहीं उनको ऐसी फीलिंग होती है कि हमने कहीं आपको देखा है, जानते हैं। जानते हैं। तो मैंने दो भाइयों को रखा, तो वो सारी फीलिंग्स मैंने ये दो भाइयों को रखा। सो व्हेन दे मीट, हाउ दे टॉक, हाउ दे, मतलब कुछ के देखा है, भाग अर्जुन भाग मुंह से निकल आता है। But sir, ऋतिक ने जब अपना पोस्ट डाला अभी इंस्टाग्राम पे, and I felt that that story was so wonderful that he shared about him, you know, being all of 17-year-old, sitting in that room with you and the writers, and how you were just कि यार क्या आइडिया है, कुछ सोचते हैं and आपके मुंह से ऐसे निकला भाग अर्जुन भाग, and he said that in that moment I knew that, you know, this is going to be a blockbuster. So ये just this idea coming to you, do you recall that time जब Yeah, आप yeah, रूम में yeah, थे, yeah. कैसे आया आपको ये? नहीं, वो डायलॉग्स लिख रहे थे, डायलॉग्स पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा कि कहीं पे बोल सकता है उसको कि रिकॉल वैल्यू ऑफ द पुनर्जन्म, कि भाग अर्जुन भाग। तो उस तरह से एक्साइटमेंट में मैं भूल गया। ये थॉट कैसे आया, क्यों आया, पता नहीं मुझे, लेकिन उस वक्त स्पॉन्टेनियसली आ गया। And to also kind of mount this film as this epic, जब हम इतना ये words use करते हैं, multi starrer, big budget, you know, you have these beautiful locations, you have big dances, but in the 90s it was you doing that, right? Like you have this cast, and आज भी if you know Shahrukh, Salman, Kajol, if they are together, it is blockbuster. So ये जब when you had these ideas, क्या था आपके दिमाग में? What was your intention behind mounting it like this big? जब मैंने किंग अंकल बनाई, इसके पहले वाली पिक्चर, तो सुभाष घई हमारा अच्छे दोस्त हैं, तो ही टोल्ड मी, राकेश तुम यार बड़ी पिक्चर बनाया करो यार। तो मैंने बड़ी पिक्चर कैसे बनाऊं, आपके पास तो इतने स्टार कास्ट होते हैं, मैं कहाँ से लाऊं ये सब, और क्या कहानी हो तो बड़ी बनाओ ना। मेरा वो सोच ही उतना दूर बड़ा नहीं है, सोच मेरा छोटा है, तो मैं खून मेरी मांग, खुदगर्ज, किशन कन्हैया, इसी लेवल की पिक्चर मैं बनाता हूँ। बोले तुम सोचोगे तो सोच बढ़ेगा। तो मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे एक बड़ी पिक्चर बनानी है, कैसे बनाए। जब भी कोई कहानी के कोई आइडिया आए दिमाग में या कुछ, तो मैं ऋतिक 14, 15, 16 साल का था, तो उसको सुनाता था। अच्छा। क्या डुगू एक आइडिया है सर, उससे पापा दिस गुड आइडिया है, मतलब इज ओके पापा। तो ऐसी फीडबैक के लिए। तो जब मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या बनाऊं, किस बड़ी पिक्चर बनाना है, तो ऋतिक gave me a recall value. He said कि Papa, sometime back you had narrated me a reincarnation story, mother and two sons. Why didn't you make that? That gave me an idea. That's so wonderful. And so, yes, I started working on it. Wow. But then बड़ी पिक्चर के लिए चाहिए होता है अक्सर बड़ी स्टार कास्ट and बड़े stars. But you took two heroes who had not even seen the success that they saw after हम आपके हैं कौन and DDLJ. तो सर आज बहुत बात होती है कि एक्टर्स में न्यू कमर्स या जो नॉन स्टार्स हैं उनमें आज वो पावर नहीं है टू पुल द ऑडियंस टू द स्क्रीन्स, बट एक आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि फिल्म मेकर में फिर वो पावर होनी चाहिए, एंड आई फील यू हैड दैट पावर, that you made a film like this, that people came to theaters to watch two heroes who were so new,
तो आपको वो रिस्क नहीं लगा टू टेक? रिस्क नहीं मुझे. आई सॉ व्हेन आई सॉ देम आई ऑलवेज थॉट कि दे आर गोइंग टू बी बिग टुमारो. शाहरुख की मैंने फौजी देखी थी. तो आई वेंट टू कैम्प्स कॉर्नर. देयर वाज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड चाइना गार्डन टू हैव डिनर with my friends, with my family. And I saw Shahrukh sitting there with Vivek Vaswani. Okay, yeah. So he was a good friend of mine. So I got up from my table and went to his table. And I said, Shahrukh, are you Shahrukh? He said, yes, yes. So I saw your Fauji, I said. जब फौजी रिलीज नहीं हुई थी अच्छा. मुझे किसी ने बताई, एक वीडियो कैसेट भेजा था कि देखो. तो आई सेड यू आर वेरी कूल. Where did you see it? Well, I saw it. Somebody sent me a video to see. And you're a very fine actor. Would you like to join films? He said no. अच्छा. हाँ. Then I told that this is my number, landline number. If you change your mind, give me a call. I have a role for you. So next morning, उसका phone आ गया. Yeah. And this was King Uncle. Fucking uncle there. And then he came to me. And so I knew that he had all the germs to become a big star, a good actor, and even Salman. That's so great. But I remember reading कि casting में बहुत changes भी हुए थे because originally शायद आप शाहरुख और अजय के साथ सोच रहे थे. And they didn't like to play Karan Arjun. वो एक दूसरे का रोल था, switch करना चाहते थे. And you were very hell bent कि नहीं. एंड मुझे लेकिन ये जानना है सर कि ऐसे कैसे होता है कि वो एक फिल्म मेकर का है तो कन्विक्शन होता है या एक शायद जिद भी होती है कि मैंने अगर सोचा है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा. बिकॉज हम तो बहुत स्टोरीज पढ़ते हुए बड़े हुए एंड इवन एज जर्नलिस्ट आई नो कि जब एक्टर्स बोलते हैं नहीं मुझे ये रोल नहीं करना तो फिल्म मेकर को लगता है यार ये छोड़ ना दे मेरी फिल्म तो मैं आई कॉम्प्रोमाइज, मैं चेंज करूंगा. बट यू डिड नॉट. I did not. How did you get that sort of like where does that come from in you? I don't know. I thought कि what they were saying was not right. मैंने सोचा कि दोनों का रोल इक्वल है. उसका भी उसके पास भी गाने हैं, उसके पास भी हीरोइन है, इसके पास भी हीरोइन है. दोनों के पास सेम गाने हैं, सेम एक्शन करते हैं. एक खाली है कि करण जो है उसकी बॉडी अच्छी है और अर्जुन जो है वो दूसरे चीज़ों में माहिर है और दोनों के एक्शन सीन्स बराबर हैं. तो क्यों अपना इमेज चेंज करना चाह रहे हैं? वो दोनों बहुत अच्छे रोल्स हैं. But they left the film, man. पर उनका रीजन क्या था? Like why did they want the other roles? I don't know. हाँ. They would know that better. So then I signed Salman and Amir. And then when Shahrukh came to know that it was Amir, he's playing his role. So he came to me and he said, no, I want to do it. Though I'm not convinced with the plot of the story, but I leave it to you. तो आप जैसे बोलेंगे वैसे करूँगा मैं. तो फिर अजय शायद नहीं समझा उस वक्त. क्या है कि नए होते हैं, नए छोटे हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है उनको. So they don't have that foresight. Yeah, so true. तो फिर ऐसी कहानी. So आमिर को बुरा लगा कि he could not. नहीं, आमिर को मैंने समझाया कि मेरी डेट्स है अगले महीने से. आपने बोला था मैं 6 महीने के बाद शुरू करूँगा. तो he understood. बट जब फिल्म रिलीज हुई और इतनी बड़ी हिट हुई तब शाहरुख को तो लगा होगा कि यार आई कुड नॉट सी व्हाट राकेश सर डिड. Yeah, he told me that I was wrong absolutely then. Right, but that's also. But then he made also Om Shanti Om. Right, and so वही बात है कि आज के दौर में फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज टेल मी, डू यू वॉच फिल्म्स ऑफ टुडे? लाइक आप अभी भी जाते हैं उतना ही कि यार क्या बन रहा है आजकल, आई वांट टू सी. मैंने आज तक कोई पिक्चर मिस नहीं की है. रियली? हाँ. वाओ. ओटीटी फिल्म हो या थिएट्रिकल फिल्म हो, मैं एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे मेरा 3 दिन यही काम होता है, पिक्चरें देखता रहता. दैट्स सो कूल. एवरी न्यू फिल्म आई हैव सीन बिफोर आई प्लंज इनटू डायरेक्शन. So last 3-4 years I was planning to become a director. In this 3-4 years I must have seen more than 1,000 films. What? Hit Wow. films and flop films I saw. तो ये hit क्यों हुई है, ये flop क्यों हुई है. So that much knowledge I gathered
और वो मेरे अंदर ही आ गया सिस्टम में। तो मैं जब भी सोचता हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं तुम ऐसे कैसे सोच लेते हो, पर मैं सोच नहीं रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली आता है। You moved ahead with times because Yeah. आप देख रहे हो कि अब मैं आपके देख आसपास रहा क्या बन रहा है. But sir, फिर तो I'm sure you have also this insight कि आज 2024 में जिस तरीके की फिल्म्स बनती हैं, do you feel that Karan Arjun आज भी उतनी ही नई है? I mean, I'm not talking about the audience, but you as a filmmaker, do you feel that it yeah, of still course. stands the test of Yes, time? yes, 100%. Because this emotion, this kind of a story, अगर आज भी मैं बनाता तो लोग शायद बिलीव कर लेते, क्योंकि एक फेरी टेल है, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ फेरी टेल। But sir, I don't know if you see this, but बहुत फिल्म मेकर्स को डाउट होता है कि लिखने से पहले ही राइटर को ये बहुत आजकल ये डाउट होने लगा है कि क्या ये ऑडियंस बिलीव करेगी, क्योंकि बोलते थे कि 90s और अर्ली 2000s का वक्त था जब ऑडियंस कुछ भी दो तो बिलीव करती थी. अभी दे आर लाइक सो स्मार्ट, दे लाइक अरे यार ये तो नहीं होगा. बट आई समटाइम्स फील कि अगर नहीं नहीं, बिलीव से पिक्चर हो. वही बनाना चाहिए जो नहीं होगा, तो ही ऑडियंस को अच्छा लगता है देखने के लिए कि यार यार ये तो हो नहीं सकता, लेकिन ये इतना, और वो पिक्चर जब देख रहे हैं तो खो जाते हैं पिक्चर में। तो डायरेक्टर का काम है ये, आप अवतार जैसे पिक्चर बनाइए जो हो नहीं सकता, मगर आप उस दुनिया में खो जाते हैं। तो डायरेक्टर क्या होता है, यही तो होता है कि आपको ऑडियंस को अपनी दुनिया में ले जाना है, उससे उस दुनिया को दिखाना जो वो दुनिया उसने देखी नहीं है, वो कहानी जिसने सुनी नहीं है। Sir, I have to ask you on this note that once Karan Johar had said this in an interview that gone are the times when two heroes wanted to work with each other. आज तो बहुत मुश्किल है दो हीरोज को साथ में लेके डेट्स, उनकी इनसिक्योरिटी सबको साथ में लेके एक फिल्म बनाना. And I think whenever we talk about filmmakers who could do this, I think we have the names of you, Yash Chopra, who could get heroes जो एक साथ उस समय प्राइम पे थे and they could work together. But do you feel कि आज के दौर में आसान है हाँ, to get अच्छा, two heroes? अभी रिसेंटली सिंगम टू जो रिलीज हुई है उसमें 5 हीरो हैं। बट सर रोल तो फिर ऊपर नीचे होता ही है. नहीं, पर अगर आपको 2 हीरो की पिक्चर बनानी है, तो जब मैंने करण अर्जुन लिखी थी तो मैंने नाप तोल के पिक्चर बनाई थी कि दोनों के हीरो के रोल्स बराबर, बिकॉज आई वाज एन एक्टर, सो आई न्यू कि अगर मेरे रोल थोड़ा सा भी कमजोर होगा तो मैं नहीं करता, तो मैंने दोनों के रोल्स को बराबर रखा, तो वो बना नहीं कर पाए। तो आज भी अगर आप कहानी बनाए ऐसे और 2 हीरो के इक्वल रोल डाले, दोनों करेंगे। बहुत सुंदर बात करण अर्जुन की, जब हम वी वॉक डाउन द मेमोरी लेन इज ऑल्सो दैट ऋतिक वॉज असिस्टिंग यू ऑन दैट सेट. एंड आई थिंक एक फोटो है ऋतिक की शाहरुख सलमान की जो हर साल करण अर्जुन के एनिवर्सरी पे वायरल होती है. Because you know, I mean, at that time, nobody knew that this is going to be, you know, the future superstar of Indian cinema. But I also read that how you treated him like any other crew member. And how was it difficult for you as a father to keep him that, you know, to give him that sort of ki, you know, you will have to work like any other person? Or was it something that you really wanted to inculcate in him? I really wanted to. तो हम ब्रेकफास्ट करते थे साथ में शूटिंग से पहले, स्टूडियो जाने से पहले। तो मैं अपनी गाड़ी में जाता था, वो बस में जाता था। शूटिंग पैकअप, बस में घर आता था, मैं गाड़ी में आता था। कहीं पर भी शूटिंग पर जाना और ट्रेन में लोगों के साथ जाएगा, यूनिट के साथ उनके होटल में शेयर करेगा। 4 आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी कमरे में रहते हैं, वैसे ही उनका ही खाना खाएगा जो उनके लिए बनता है, जो उनके लिए। So for 4 films he did that. Wow. Not one film, Karan Arjun. He had worked with me in 4 films. Koila also. Koil also he worked. And he worked in Khel also. I came up the same way. Because when I joined the industry, I joined as an assistant director for 4-5 years. So I also wanted him to see this part of the film making. कि जब एक्टर्स लेट आते हैं तो यूनिट क्या बोलती है पीछे. So that's why he's very punctual now. Yes, and he is known to be one of the most professional actors that we have.
And I also feel that I've heard so many from so many directors that how Hrithik is such a director's actor. Like he will not care about anything else, but my shot should be good and my director should be happy. Yeah. And I think it's because the foundation was such. Yeah, maybe because maybe he must have learned Yeah. from these last 4 5 years में वन असिस्टेंट एक्टर्स कैसे काम करते हैं, एक्टर्स जब लेट आते हैं तो यूनिट कैसी बातें करती हैं, क्योंकि यूनिट वाले आते हैं कितने दूर दूर से टाइम पे पहुंच जाते हैं, देन दे हैव टू वेट फॉर 2 3 hours, तो ऐसा होना नहीं चाहिए. नहीं होना चाहिए, सही बात. बट सर आपको लगता है कि करण अर्जुन कैन बी मेड एवर और अ फिल्म लाइक दैट कैन बी मेड एवर विद 2 other heroes? I can't make it, but somebody can make it because मेरे लिए that time was organic. अभी मैं करूँगा तो it will become artificial कि यार मुझे वो सीन डालना है, तो मैं वो भावना ला सकूँगा. जब तक मेरे में ये भावना नहीं आएंगी तो मैं एक्टर से वो काम नहीं निकाल पाऊंगा. पर किसी और को अगर ये ऐसा हो तो वो बना सकते. तो somebody से कि सर हमको रिवाइव करना है, we want to make a Karan Arjun for 2025. So will you be up for it, like as a producer or as a filmmaker? Of course, yeah. If they want to make it, why not? Right. But are there any two actors who you really like in today's times, who you feel, I feel they that come together, it will be magic on screen? many actors are there. So many actors. They're all good actors today. हर एक्टर एवरी फिल्म में दे आर सो डिफरेंट एंड दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, सो एवरी एक्टर इज वेरी गुड. कोई नाम है जो आपको दो पसंद है? करण अर्जुन के लिए, हाँ. करण अर्जुन में आई फील इफ दे अगर मेरे राय ले तो नेचुरली ऋतिक हाँ, एंड obviously. रणबीर कपूर. I think that would be magic on screen. That would be. But then lastly, sir, because we don't meet you every day, and to have a filmmaker and actor who's had this solid filmography, how do I not ask you that what's the key to a quintessential Hindi film? क्योंकि आज के टाइम पे हमें बहुत महसूस होता है, and I speak to a lot of people in the audience कि यार वो emotions नहीं है जो पहले महसूस होते थे. आज भी करण अर्जुन टीवी पे आती है, my mother would watch and she would cry, but she would go to the theaters today, she will not feel anything. And then you feel कि यार चाहे स्टोरी में लॉजिक है नहीं है, इमोशंस होना जरूरी है. You tell me sir, आपने इतनी ऐसी फिल्में बनाई हैं जो I don't know. That's what I want to see with this film. When Karan Arjun releases, what is the reaction of the young audience? Because I feel music, a wholesome film is always better to make than to make just a niche one-line story film. I feel when you are working with 250, 300 unit people and you put in such a lot of effort, तो आपकी पिक्चर झुमरी तलैया से लेके एले तक सब लोग देखना चाहिए. So for them they should have romance, they should have songs, they should have comedy, they should have action a bit, and not in a take a new subject. I've always taken a new subject. yeah. A subject which is not believable, and make a screenplay and decorate it with all these things. I know it's very tough. That has to be in you. तो मैंने इतनी सारी पिक्चरें देखी हैं पहले, वो होता ना कि अब वो घुल मिल गए हैं मेरे में वो सब चीज़ें, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे से आती हैं. कोई ऐसी एक चीज है जो आपको लगता है आज के दौर के हिंदी सिनेमा में है जो शायद आपने लर्न किया है बाय वाचिंग पीपल्स वर्क? No, a lot of films like I saw Laapata Ladies and I loved that film. And there are many OTT films and अभी नाम याद नहीं आ रहा, कोई हर हफ्ते में 3 3 4 4 पिक्चर देखता हूँ, बट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो पिक्चर. पर क्या है वो सब पिक्चरें एक अपनी डायरी की पिक्चर. इट इज नॉट अ पिक्चर. जैसे पहले हम अभी तो नाम बोलते हैं पैन इंडिया, पर पहले एक्चुअली पिक्चर पैन इंडिया होती थी. राइट. बट कोई ऐसी चीज आपको सर लगता है, एक ऐसा एलिमेंट जो आपको लगता है कि हिंदी सिनेमा में आज शायद नहीं है जो पहले था एंड इट शुड कम बैक? सॉन्ग्स नहीं है. So there is no recall value of any actor. Till Hrithik, there were songs. So true. 5 songs, 6 songs.
शाहरुख, सलमान, शमी कपूर, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, आप शशि कपूर, हम आज आप भी गाने सुनते हैं। सुनते हैं तो अरे ये गाना शशि कपूर ने गाया, अरे ये गाना आज कोई रिकॉर्ड वैल्यू नहीं है किसी एक्टर का, क्योंकि गाने नहीं है पिक्चर में, देयर इज नो लिप सिंक सॉन्ग, और लिप सिंक सॉन्ग्स के लिए भी सिचुएशन नहीं है। वो हाँ गाने इस तरह डाल देते हैं कि आपने लड़के ने लड़की को देखा कट किया स्विट्जरलैंड में गाना गा रहे हैं, तो वो आपको वो फील नहीं होते हैं रोमांस का, फीलिंग ही मिसिंग है सर। फीलिंग ही मिसिंग। सिर्फ नंबर्स की बात होती है, फीलिंग्स की बात नहीं होती। हाँ। इतना बॉक्स ऑफिस, बट वी डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स व्हिच लाइक यू सेड इज सो ट्रू, बिकॉज आई फील आज भी जब हम डांस करने जाते हैं शादियों में, सो लाइक यू सेड टिल ऋतिक, वही गाने बजते हैं और बजते हैं उसी में गाने से। पूरा फैमिली गोज आउट एंड यू नो, बिकॉज आज के गानों का वो वैल्यू नहीं है, बिकॉज लाइक यू सेड लिपसिंग नहीं, का। आप ये सारे गामा प्रोग्राम देखिए, इंडियन आइडल देखिए, सारे पुराने पुराने गाने गाने। बच्चे बच्चे पुराने गाने गाते हैं। So true. I know. I think that music is something which really needs to come back in a big way. But I think I'm very happy that Karan Arjun has come back in this big way. Let's see that. बहुत बहुत मजा आएगा जब थिएटर में देखेंगे। अभी आई थिंक ये पूरा साल ने दिखाया है कि कितनी पुरानी पुरानी फिल्में हैं, वो भी लोग देखना चाहते हैं, Yes. यू नो, एंड जनरेशन जिन्होंने वो शायद फिल्में देखी नहीं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस विद अस एंड ऑल द बेस्ट। Thank Can't you. wait to see. Thank you. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.